Dear friends, wish you a very happy morning. Hope all of you must be hale and hearty. You must be enjoying your life. You must be studying properly, eating properly, playing properly, and making some mischiefs also. Hope all of you must be waiting for me also, because as far as my experience is concerned, as far as myself is concerned, I can't live without you. I always miss you. I always wish to be with you. I want to read with you. I want to eat with you. I want to play with you. I want to make some mischiefs also with you people. I like to be with you because yours is a very fine world, a very happy world, a very handsome world. आशा है दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सभी खुश होंगे, सानंद होंगे, मस्ती में होंगे, खूब पढ़ रहे होंगे, खूब लिख रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, बदमाशी भी कर रहे होंगे। अच्छी बदमाशी, प्यारी बदमाशी, मीठी बदमाशी। मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, बहुत अधिक। आई मिस यू अ लॉट। गॉड नोज यू मिस मी और नॉट। पता नहीं आप मुझे कितना मिस करते हैं। हाउ मच यू मिस दिस फ्रेंड, दिस ग्रामर फ्रेंड ऑफ योर्स। आई मिस यू अ लॉट। आप तमाम बच्चों को किसू, बिसू, चिकू, मिकू, हिकू, टिकू, ओना, सोना, सोनम, मैं आप सबों को मिस करता हूं। In my previous video, we had discussed, or I had told you about some of your friends. I have introduced you people to some of your grammar friends rather. I have told you that there are many words, बहुत सारे शब्द हैं, and these words have different functions to play. Each word plays its own function. Each word plays its own role. Each word has been given its role to play, has its own task to do, has its own work to do. सबका अपना अपना काम है, and on the basis of their works, on the basis of their works, उनके काम के आधार पर, these words have been divided into 8 classes, 8 groups, which you know is known as parts of speech. Yes, thank you, Chiku. You are right. Yeah, Bisu, you are right. Yes, Bisu. Thanks a lot to you people. It seems that you people go through my video very sincerely. Thanks a lot. तमाम बच्चों को बहुत बहुत आशीष, प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। आप तमाम बच्चों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, those small kids, those boys, those students, my little friends, thanks to all of you who try to listen to this video, the videos of mine,
and try very much to learn something out of it. तो words on the basis of their work, अपने अपने काम के आधार पर बांट दिए गए 8 भागों में, 8 क्लासेस में, known as parts of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. These are the 8. Today I am going to talk about noun. N-O-U-N. N-O-U-N, noun. Noun means sangya. N-O-U-N. N-O-U-N, noun. Musical. See the music of noun. N-O-U-N, noun. N-O-U-N, 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 noun. Noun, संज्ञा. हिंदी में इसको संज्ञा कहते हैं. पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो मेंबर है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ दैट फैमिली, पार्ट्स ऑफ स्पीच फैमिली, इज नाउन. नाउन है क्या? व्हाट इज अ नाउन? नाउन क्या है? व्हाट इज अ नाउन? नाउन नाउन क्या है? नाउन विल टेल यू इटसेल्फ. नाउन खुद बताएगा आपको. नाउन कहता है, डियर फ्रेंड्स, आई एम अ नेमिंग वर्ड. Oh, my dear friends, my little kids, little chumps, I'm your friend. I'm always with you. I'm you. You are me. Because I'm a naming word. Noun is a naming word. Noun क्या हो गया? It is a naming word. It is the name of a person, place, thing, animal, state of mind, मानसिक अवस्था जिसको आप कहते हैं. नाउन किसी व्यक्ति का नाम होता है, किसी वस्तु का नाम होता है, किसी प्लेस का नाम होता है, किसी जानवर का नाम होता है. हमारी आपकी जो मानसिक स्थिति है, मानसिक अवस्था है, स्टेट ऑफ माइंड जिसको आप कहते हैं, उसका नाम है नाउन. whatsoever you see in this world, whatsoever things are there in this world, इस दुनिया में जितनी चीजें आप देखते हैं, जो जो चीजें मौजूद है इस दुनिया में, धरती के ऊपर, आकाश में, समुद्र के नीचे, पहाड़ पर, कहीं भी, wherever, whatever, whatsoever thing it is, all these things, all those things are noun and noun and noun. सब तो नाउन ही है. सब कुछ नाउन, सब कुछ नाउन है. एवरीथिंग. नाउन के अलावा कुछ है ही नहीं. द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, फ्रॉम दिस हेयर up to the toe of your legs are noun. This hair is noun. This forehead is noun. This eyebrow is noun. Eyes are nouns. Nose is noun. Lips are nouns. Ears are nouns. Cheeks are nouns. Neck is noun. This t-shirt I am wearing is noun. This finger is noun. Dog is noun, cow is noun, helicopter is noun, copy is noun, book is noun, pen is noun, mama is noun, papa is noun, chacha is noun, uncle is noun, bat is noun, ball is noun, wicket is noun, football is noun,
milk is noun, oil is noun, ghee is noun, gas is noun. Team is noun, army is noun, happiness is noun, music is noun, love is noun, anger is noun, खगड़िया is noun, मुजफ्फरपुर is noun, पटना is noun, इंडिया is noun, भागलपुर is noun, अमेरिका is noun, इंग्लैंड is noun, ऑस्ट्रेलिया is noun, हीरा is noun, मोती is noun, gold is noun, iron is noun, apple is noun, orange is noun, mango is noun, lychee is noun, pumpkin is noun, papaya is noun, brinjals are noun, egg is noun, omelette is noun. सब तो नाउन ही है. Each thing, each and everything which are present in this universe, इस यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी चीजें हैं सभी संज्ञा है, सभी नाउन है. सब, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, किसी भी व्यक्ति का नाम लीजिए, टेक द नेम ऑफ एनीवन, इट विल बी नाउन, ही विल बी नाउन. टेक द नेम ऑफ एनी एनिमल, कोई भी जानवर हो, कोई भी जानवर, मुझको भी ले लीजिए, कोई भी जानवर हो, टेक मी ऑल्सो, ऑल आर नाउन. टेक any items you love to drink, they are nouns. The fast food you eat, chowmein, pizza, burger, they are noun. Rice, potato, pulse, noun. Can you give me any example of anything which is not a noun? No, it's not possible. You can't. You can't. I can't. None can. आप, हम, क्या, कोई भी नहीं दे सकता है. एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं हो सकता है किसी भी चीज का जो नाउन नहीं है. कहां से देगा? फ्रॉम वेयर? बिकॉज एवरीथिंग इज नाउन. क्योंकि सारी चीजें तो नाउन ही हैं. सब तो नाउन ही है. सब नाउने बा. जे बा से नाउने बा. जे बा से नाउने बा. जो है सभी नाउन हैं, सभी संज्ञा हैं. संज्ञा के अलावा कुछ और है ही नहीं. तो बात ही खत्म हो जाती है. सब नाउन ही है. नेमिंग वर्ड है, प्लेस का नाम है, पर्सन का नाम है, एनिमल का नाम है. स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड का मतलब हो गया बाबू मानसिक अवस्था. इस मानसिक अवस्था को हम महसूसते हैं. वी फील इट, वी कांट टच इट, वी कांट टच इट, वी कांट सी इट. दिखती नहीं है मानसिक अवस्था ये. वेन यू सी योर पापा स्कॉल्डिंग यू, जब अपने पापा को आप देखते हैं आपको डांटते हुए, फटकारते हुए, वेन यू फाइंड योर फादर इन एन एंग्री स्टेट, जब आप उनको गुस्से में देखते हैं, तो गुस्से में आप क्या देखते हैं? गुस्सा उनका थोड़े देख पाते हैं. वो तो उनका चेहरा दिखता है. यू सी द फेस, angry face of his. You see the angry face, you don't see the anger. गुस्सा नहीं दिखता. गुस्सा थोड़ी दिखेगा. You feel it कि हमारे पापा गुस्से में हैं.
लाफ्टर, हंसी, स्माइल, लाफ्टर जिसको आप LAUGHTER, LAUGHTER, लाफ्टर, हंसी। हंसी क्या है? इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड, वो एक मानसिक अवस्था है। सैडनेस, SADNESS, उदासी जिसको आप कहते हैं, सैडनेस, व्हाट इज इट? इट इज ऑल्सो ए स्टेट ऑफ माइंड, वो स्टेट ऑफ माइंड है, मानसिक अवस्था है, हमारे मन की अवस्था है, हमारे मन का पोजीशन है, हमारे मन का स्टेट है, वो स्टेट ऑफ माइंड है। तो दिस स्टेट ऑफ माइंड इज ऑल्सो नाउन। यानी क्लियर हो गया, आप सभी लोग समझ गए कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन। पर्सन में आप किसी का भी नाम ले लीजिए, किसु, बिसु, चिकू, उत्कर्ष, अतुल्य, कोई भी नाम हो सकता है। झगुनी, सगुनी, नीना, मीना, हीना, टीना, एनी नेम, कोई भी नाम, कहीं का भी, केवल इंडिया का ही नहीं, केवल बिहार का ही नहीं, खगड़िया और मुजफ्फरपुर का नाम ही नहीं, नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन दिस वेरी यूनिवर्स, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नाम होगा तो वो नाउन ही होगा। प्लेस का नाम ले लीजिए, एनी प्लेस, एनी प्लेस, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, बिहार, पटना, भागलपुर, रांची, दरभंगा, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, तमिलनाडु, केरल, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, इंग्लैंड, गोवा, सब क्या है? ये आर द प्लेसेस, ये सब स्थान हुए, स्थान के नाम हुए, नाउन हो गए। नन कैन डिनाई इट, नाउन हो गए सब। अब जानवर को लीजिए, एनिमल्स को लीजिए, काउ, बफलो, एस, डंकी, लायन, जेब्रा, हॉर्स, टाइगर, एलिफेंट, स्नेक, स्कॉर्पियन, स्नेक, स्कॉर्पियन, सब क्या है? एनिमल्स, नाउन हो गए। थिंग, बुक, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, बैग, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, आइडेंटिटी कार्ड, your school, the badge, whiteboard in your school, blackboard in your school, chalk, duster, window pane, door, doormat, bed, bed sheet, chair, everything is noun। यह भी नाउन हो गया। मानसिक स्टेट जो मैंने आपको बताया, हैप्पीनेस, लाफ्टर, सॉरो, सैडनेस, एंगर, लव, these are the mental states, all are nouns। after noun comes pronoun। प्रो का मतलब होता है फोर, FOR। अब फोर का मतलब होता है के लिए। दिस चॉकलेट इज फॉर चीकू, यह चॉकलेट चीकू के लिए है। एंड दिस टॉफी इज फॉर चीकूज मदर, ये चीकू की मां के लिए है। दिस डंडा, दिस लाठी इज फॉर चीकूज फादर, ये डंडा चीकू के पापा के लिए है। चीकूज मदर विल यूज इट
On Chiku's papa, Chiku's father. Kisu's mother will use that stick on Kisu's father. तो for का मतलब ही होता है के लिए. I am going for Patna. I am going to Patna. I am leaving for Patna. पटना के लिए मैं जा रहा हूं. तो for noun यानी words which come in place of noun. वर्ड्स वैसे शब्द जो नाउन के बदले में आते हैं. संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को फ्रेंड्स बच्चों हम सर्वनाम कहते हैं. संज्ञा के बदले में, संज्ञा नहीं है, मान लीजिए छुट्टी पर है, उसके शरीर में दर्द हो गया काम करते करते, तो संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं. Therefore, pronouns are also known as replacing word. Replace. इन वर्डों से हम नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, नाउन को हटा देते हैं. भैया तुम आराम करो, थक गए हो. और नाउन का जो काम होता है, द वर्क ऑफ नाउन is being done by pronoun. The work of noun is being done by pronoun. यानी the pronoun works in place of noun. नाउन के बदले में जो शब्द काम करता है, नाउन का ही काम करता है. वो उस शब्द से नाउन का ही बोध होता है. यानी संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं. वर्ड्स विच कम इन प्लेस ऑफ नाउन आर नोन एज प्रोनाउंस. वर्ड्स विच रिप्लेस, REPLACE, वर्ड्स विच रिप्लेस nouns are pronouns. अब now see the example. If I say Chiku is a boy, Chiku is a boy, Chiku reads in standard 1, Chiku's father is a businessman, Chiku's mother is a housewife, Chiku is a good boy, Chiku has a sister, Chiku lives in Muzaffarpur, Chiku loves his parents, Chiku respects his teachers, Chiku studies well. अब देखिए हमने क्या किया, हर सेंटेंस में चीकू 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 चीकू. Bisu is a boy. He is a little boy. Bisu is a boy. Bisu is a little boy. Bisu reads in standard 2. Bisu's father is a teacher. Bisu's mother is a teacher. Bisu loves his parents. Bisu goes to his school daily. Bisu reads there very well. Bisu respects his teachers. Bisu obey his teachers. अब देखिए इन sentences में in every sentence Bisu has been used. और in previous sentence example Chiku has been used. Chiku 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 Bisu Bisu Bisu. It does not look good. बार बार to repeat a noun again and again in sentences, in different sentences, repetition of the same noun spoils the beauty. It spoils the beauty of the noun, of the sentence rather.
वो सेंटेंस की सुंदरता को खराब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। तो just to save the sentence, just to make the sentence look good, look handsome, look beautiful, pronouns are used. Now Chiku is a boy, he is good, he goes to his school daily, his father is a businessman, his mother is a housewife, he has a sister, he loves his parents, he respects his teachers, he obeys his teachers. अब यहां देखिए, in these sentences he and his are pronouns. Chiku is a boy, he is good. Who is good? मैं कहता हूं, if I say Chiku is a boy, Chiku is good, तो मैंने चीकू को हटा के लिख दिया Chiku is a boy, he is good. यानी ही किसके लिए आता है? He comes for Chiku, he stands for Chiku. Chiku loves Chiku's parents. Chiku loves Chiku's parents. I can tell this sentence likewise. Chiku loves his parents. Yeah, he loves his parents. Bisu is a boy. He is a good boy. So he stands for Bisu. ही बिसु के लिए आया। तो प्रोनाउंस आर वर्ड्स, प्रोनाउंस ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन के बदले में प्रयोग में लाए जाते हैं, नाउन के बदले में प्रयोग में आते हैं। हम नाउन के बदले में इसका प्रयोग करते हैं, नाउन के स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं, नाउन की जगह इसका प्रयोग करते हैं, नाउन को हम इन शब्दों से रिप्लेस कर देते हैं। ही, सी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, दे, देम, देयर, यू, योर, माई, माइन, all these words are pronouns. ये सारे शब्द जो हैं वो प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउंस। प्रो मतलब फॉर, नाउन नाउन के लिए, नाउन के स्थान पर, नाउन की जगह पर, नाउन के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को ग्रामर में, व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में हम उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जबकि इन इंग्लिश ग्रामर दीज वर्ड्स आर नोन एज प्रोनाउंस। इन शब्दों को वैसे शब्द, दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, दोज वर्ड्स विच स्टैंड फॉर नाउन्स, दोज वर्ड्स विच वर्क for noun are pronouns. इन शब्दों को हम कहते हैं प्रोनाउंस। नाउन आप समझ गए, नाउन नेमिंग वर्ड को कहते हैं। इस धरती पर जो कुछ भी आप देखते हैं, छूते हैं, महसूसते हैं, whatsoever you see, whatsoever so you touch, whatsoever you feel,
whatsoever you listen or hear, whatsoever you eat, whatsoever you smell, सब नाउन ही है। क्योंकि नाउन पर्सन का नाम होता है, प्लेस का नाम होता है, थिंग का नाम होता है, एनिमल का नाम होता है, स्टेट ऑफ माइंड का नाम होता है। और है क्या दुनिया में? व्हाट इज देयर इन द वर्ल्ड? इसके अलावा दुनिया में है क्या? कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं। आगे नाउन, पीछे नाउन, दाएं नाउन, बाएं नाउन, ऊपर नाउन, नीचे नाउन, बीच में नाउन, सब जगह नाउन ही नाउन, सब जगह नाउन। इससे आप बच ही नहीं सकते हैं। ऑल थिंग्स आर नाउन। जिधर देखिए नाउन ही नाउन। बाएं देखिए नाउन, देख लीजिए दाएं, इधर भी नाउन। ऊपर देखिएगा तब भी नाउन, नीचे देखिए तब भी नाउन, बीच में देखिए तब भी नाउन। सुबह भी नाउन, शाम भी नाउन, रात भी नाउन, दोपहर में भी नाउन। जहां जाइएगा वही नाउन। Wherever you go, you will find noun. जहां चले जाइए नाउन कहता है, अजी हमसे रूठ के कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। नाउन कह रहा था एक दिन बच्चों से कि बच्चों हमसे रूठ के कहां जाइएगा, अजी हमसे रूठ के कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। जहां भी आप जाओगे, जिससे भी आप मिलोगे, जो भी आप खाओगे, whatsoever you eat, whatsoever you drink, whatsoever you wear, whatsoever you purchase or buy, whatsoever you read, whatsoever you learn, whatsoever you forget, whatsoever you break, whatsoever you create, you make, सब नाउन। all are nouns, all are nouns, all are nouns, all are nouns. And pronoun, as I have told you, pronoun comes in place of noun. जो pronoun है वो noun के बदले में आता है। नाउन का ही काम करता है। इट वर्क्स एज नाउन, है वो प्रोनाउन। प्रोनाउन नाउन के लिए, नाउन के बदले में, नाउन के स्थान पर, यानी वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर प्रोनाउंस। वैसे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग में लाए जाते हैं या प्रयोग में आते हैं या प्रयुक्त होते हैं, जिनको संज्ञा के बदले प्रयोग में लाया जाता है, वे सारे शब्द हिंदी व्याकरण के हिसाब से सर्वनाम होते हैं। एंड इन इंग्लिश दैट सर्वनाम इज नोन एज प्रोनाउन। उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों। नाउन और प्रोनाउन आपने देख लिया। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। अगले क्लास में हम लोग एडजेक्टिव डिस्कस करेंगे, एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे, वर्ब के बारे में जानेंगे, भैया वर्ब भैया क्या है और एडवर्ब जी क्या है। तब तक के लिए विथ वेरी हेवी हार्ट I have to take permission from you people to depart. बहुत भारी मन से दोस्तों आपसे विदा लेना होगा। आपसे विदा होने की आज्ञा चाहता हूं। I will try my level best to see you again as soon as possible. जितनी जल्दी होगा फिर आपके बीच आऊंगा। Because as I have told you, I can't live without you. I miss you a lot. I miss you a lot. I miss you a lot. Thanks a lot. May God bless you all. May you touch the sky of success in your life.
Thank you, thank you, thank you, and God bless you.